introduction, a rectifier is a device that converts alternating current which periodically reverses direction into direct current, which flows in only one direction. This process is called rectification. Rectification is nothing but just converting an alternating current to direct current. As simple as that. And the rectifiers may be of different forms, just like vacuum tube diodes or mercury arc or copper or selenium oxide rectifier or semiconductor diode, silicon control rectifier. Silicon control rectifier is, the one that belongs to your thyristor family. A silicon control rectifier that you will be studying in power electronics subject. Silicon control rectifier will come under thyristor family. In thyristor family, silicon control rectifier is one of the types of thyristors where that will be used for different conversions and other silicon based semiconductor switches. This rectifier is nothing but converting AC to DC. That may be of two types. That is half wave rectification and the another one is full wave rectification. Coming to the half wave rectification, it is the process of removing one half of the input signal to establish a DC level is called half wave rectifier. Nothing but if your input is a sine wave having two half cycles, first half cycle from 0 to pi and next half cycle from pi to 2 pi. So, उस conversion of one half cycle from AC to DC is nothing but half wave rectification. Here, only the rectifier conducts during positive half cycle of AC input and negative half cycle is suppressed. Here, just you can see if this is your input is AC, nothing but I am taking a sinusoidal. Here from 0 to pi you will have positive half cycle. From 0 to pi you will have positive half cycle. From pi to 2 pi you will have negative half cycle. From pi to 2 pi you will have negative half cycle. Why negative half cycle? Here it is below the origin. This is your positive half cycle. Conversion of one half of your AC input is nothing but half wave rectification. Nothing but here the negative one will be suppressed, only the positive half will be converted into your DC. How that output will be there, how it will be converting, and what will be the circuit will see. This is your input and let's see how will be the output. Output क्या होगा? ये बोल रहा है कि half wave rectifier is the one that will only convert the positive half cycle, right? क्या लिखा है? It removing one half of the input signal and it will conduct during positive half cycle. Let's see the circuit. Now we'll see the circuit. This is your half wave rectifier. ये आपका AC supply है, which is your sinusoidal signal. This is your input. Input is your AC supply. This input is your AC supply, which is sinusoidal. From 0 to pi it will be having positive half cycle and from pi to 2 pi it will be having negative half cycle. From during positive half cycle nothing but A will be positive, B will be negative. A will be positive, B will be negative. Nothing but A will be positive, nothing but positive connected to anode of the diode. Positive connected to anode of the diode, nothing but it will be forward bias. It will be forward bias, nothing but some current starts flowing. Some current starts flowing through the diode. Nothing but there will be currents that will be flowing through the diode, RL and this one. The cycle will be like this. This is your cycle. यहाँ से लेके here, let me see. The current will start flowing like this in this circle. This is your current direction. Clear? Here the A will be in positive and B is negative. If positive connected to anode and negative connected to cathode will means this diode will be forward bias condition. Nothing but it is in conduction. When it is in conduction, the current starts flowing like this.
in this direction. The current continuously starts flowing in this direction. During negative half cycle क्या होगा? Positive half cycle 0 से लेके pi तक. Once there is negative half cycle from pi to 2 pi, when there is negative half cycle, nothing but here it will be minus, here it will be plus. When minus is applied to the anode of the diode, then the diode will be reverse bias. When there is reverse bias, there will be no conduction. Nothing but current is approximately equals to 0. When current is approximately equals to 0, then there will be no output voltage that will be appearing across the load resistance. Nothing but output voltage will also be 0 when your the diode is not conducting. When diode is not conducting, it is acting like a open circuit. Diode not conducting है, open circuit है. तो RL कितना होगा? RL के पास जो current आ रहा है, that will approximately equals to 0 because there is no current flowing here because the diode is reverse bias. When there is the reverse bias, there will be 0 current that is flowing, and if there is 0 current, the voltage that is appearing across the RL, nothing but Vout, that will be 0 during pi to 2 pi. Hence, your output will be same as input because यहाँ पे कोई डायोड आपको लॉसलेस मान लिया तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है. जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट. बट नेगेटिव हाफ साइकिल, द नेगेटिव विल बी सप्रेस्ड एज द डायोड इज रिवर्स बायस. तो pi to 2 pi में आपका कोई वेवफॉर्म नहीं है. सिमिलर टू pi to 2 pi to 3 pi you will have waveform, and 3 pi to 4 pi you will not be having it. The simple is your Vout is following the input. As this is resistor, the current as well as Vout will be in phase with each other. The same waveform will be there for Vout as well as the shape of the waveform will remain same for current as well as voltage because the load is resistive load. As the load is resistive load, Vout will be equals to I into RL. This Vout is your drop. This I into RL. Suppose I का peak magnitude है something like 5 मान लेते हैं, तो इसका लगभग कितना होगा? Something RL को 10 ohm मान लिया तो 10 into 5 it will be around 50 like this. This is how your half wave rectifier works. It will just follow the input when it is forward bias. The negative cycle will be suppressed because the diode will be reverse bias in the reverse bias condition when the negative half cycle exists between positive and negative. Negative half cycle it will be reverse bias, in positive half cycle it will be forward bias. This is your half wave rectifier. Now एक्चुअली मैं AC से DC कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरा आइडियल क्या होगा व्यू कि मैं इसको आइडियल क्या होगा, मेरा DC चाहिए, लेकिन DC कैसे होनी चाहिए ये मेरा एक्सपेक्टेशन यही है ना. DC is the one which will be starting from 0 and it will be up to time t and it will be having constant magnitude, नॉट वेरिएबल मैग्नीट्यूड. यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे इस टाइम पे एक वैल्यू, इस टाइम पे एक वैल्यू, इस टाइम पे एक वैल्यू, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज नहीं होने चाहिए. मुझे चाहिए कांस्टेंट डीसी. बट मुझे आ रहा है ये वाला डीसी, लेकिन ये कैसे डीसी है? पल्स डीसी है. पल्स डीसी आ रहा है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्या है? एसी और डीसी दोनों आ रहा है. तो मुझे चाहिए डीसी क्योंकि मेरा मकसद है रेक्टिफायर यूज करने का मैं एसी से डीसी कन्वर्ट करूं, लेकिन मेरा प्योर डीसी तो आ ही नहीं रहा, कांस्टेंट डीसी नहीं आ रहा है. तो ओनली इट इज व्हाट आई एम गेटिंग इज एसी प्लस डीसी व्हिच आई डोंट नीड. तो मुझे ये नीड नहीं है, तो मुझे एसी को रिमूव करना है क्योंकि आउटपुट में मुझे डीसी चाहिए. तो उसके लिए क्या करना है, इस पल्स जो रिपल है, रिपल जो है इसको रिमूव करना है. मुझे जितना हो सके उतना रिमूव करना है, जितना हो सके उतना रिमूव करूंगा तब भी मेरा जो आउटपुट है मैं जो चाहता हूं वो आएगा. मैं चाहता हूं कांस्टेंट डीसी, लेकिन आ रहा है ये वाला, ये सारा रिपल है. मेरा रिपल को एलिमिनेट करना है. रिपल क्यों आ रहा है? एसी की वजह से आ रहा है. तो मतलब आप रेक्टिफायर, ऐसे रेक्टिफायर में क्या आ रहा है आपका आउटपुट में? एसी भी आ रहा है और डीसी भी आ रहा है. रेक्टिफायर का मतलब है कि डीसी कन्वर्ट करना है,
लेकिन डीसी नहीं आ रहा, एसी के साथ आ रहा है, दैट इज व्हाई योर वेवफॉर्म इज लाइक दिस। तो इसको मुझे एलिमिनेट करना है, इस रिपल को एलिमिनेट करना है। इस रिपल को एलिमिनेट करना है, मुझे फिल्टर यूज करना है। अगर मैं एक फिल्टर यूज करूंगा तो ये फिल्टर की वजह से मेरा जो एसी प्लस डीसी आ रहा था वो एसी पूरा इसमें चले जाए और फिल्टर हो जाए, और प्योर डीसी मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टर के पास है। इसलिए हमको filter यूज करना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आरएल रेजिस्टर, हम एलसी फिल्टर के लिए भी जा सकते हैं, सीएलसी फिल्टर के लिए जा सकते हैं, सी फिल्टर के लिए जा सकते हैं, ओनली सी फिल्टर के लिए भी जा सकते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, कैपेसिटर अलोस एसी बट ब्लॉक्स डीसी, isn't it? यही सुना है ना आपने? इज इट क्लियर? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ये सुना है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी और अलोस एसी? नहीं सुना? सुना है सर। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी ये होता है, इट ऑलवेज ब्लॉक्स डीसी बट अलोस एसी। मुझे यही चाहिए, इसलिए मैं फिल्ड कैपेसिटर यूज करूंगा। मैं यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया तो मेरा जो यहाँ पे कैपेसिटर यूज करूंगा, यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर अगर कैपेसिटर यूज नहीं किया, मेरा एसी प्लस डीसी दोनों आ रहा है। अगर मैं कैपेसिटर यूज करूंगा, डीसी यहाँ चले जाए, क्योंकि कैपेसिटर तो ब्लॉक करेगा, अलो नहीं करेगा एसी को, एसी पूरा इसमें फिल्टर हो जाए। अगर ऐसे करूंगा तो मेरा वेवफॉर्म कैसे होगा? मेरा वेवफॉर्म ये होगा कि जो आउटपुट में यहाँ ऐसे आ रहा था, आउटपुट में यही था ना आपका 0 to 5 your positive off cycle and 5 to 25 your negative off cycle, that is giving 0 voltage। यहाँ पे जो रिपल था वो कम हो जाएगा। वो कैसे कम होके वेवफॉर्म बनेगा? Let's will be, मतलब instead of this waveform I am getting, if I use capacitor I will get waveform something like this। Now tell me, फिगर 1 का जो रिपल ज्यादा है या फिगर 2 का जो रिपल ज्यादा है? दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। हाँ, फिगर 1 या 2 में कंपेयर करके मुझे बताओ कि कौन से में मेरा रिपल कम है। रिपल मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम टू लोएस्ट, मिनिमम टू मैक्सिमम, उस दोनों का डिफरेंस जो है उसको बोलते हैं रिपल। रिपल क्या है कि आपका ये मैक्सिमम है, मतलब पीक, यहां से लेके जो यहां तक है मिनिमम, इसको बोलते हैं रिपल। अब दोनों में कौन से में रिपल ज्यादा है? यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और ये होगा मेरा रिपल। नाउ टेल मी विच रिपल इज हायर, विच रिपल इज लोअर? फर्स्ट इज हायर, so first one, फर्स्ट वन इज हायर बिकॉज ये कैपेसिटर यूज किया था या नहीं किया था, विदाउट फिल्टर और फिल्टर, सी इज देयर और नॉट? इसका नॉट देयर सर। सी इज नॉट देयर, नथिंग बट मेरा रिपल था। मतलब यहाँ पे इनपुट में मुझे या आउटपुट में मुझे एसी और डीसी दोनों कंबाइंड आ रहा है। जो मुझे चाहिए डीसी, तो उसको अब मैं कैपेसिटर यूज करके यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एसी होगा। यू कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट, but you can reduce as maximum as possible by choosing the suitable capacitor। Now tell me, the second figure belongs to which capacitor filter or not? कैपेसिटर फिल्टर यूज करने के बाद मेरा रिपल इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, मतलब आई कैन रिड्यूस द रिपल। अगर मैं और इंडक्टर फिल्टर यूज करूंगा और करंट का रिपल मैं कम कर सकता हूँ। अगर करंट का रिपल कम किया और वोल्टेज का रिपल भी कम कर दिया, देन आई विल गेट एज डिजायर्ड डीसी एज पॉसिबल। मुझे डिजायर्ड ऐसे होने चाहिए था और मुझे आ रहा है लगभग ऐसे। मुझे डिजायर्ड ये चाहिए था
और मुझे आ रहा है लगभग ऐसे, अगर मैं दो फिल्टर यूज करूंगा और अच्छे फिल्टर यूज करूंगा तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि नहीं ये डिजायर्ड डीसी के पास पहुंच रहा है। क्लियर? दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फिल्टर्स। क्लियर? लेट मी शो यू द filter. And one more thing, output frequency will be equals to input frequency per half wave rectifier. How output frequency is equals to input frequency? Output frequency, here the input AC completes one cycle of the rectified wave and also completes one half cycle. Suppose यहाँ पे एक cycle complete हुआ तो यहाँ पे भी एक ही cycle complete होगा, क्योंकि ये 180 to 360 आपका हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे वन साइकिल में ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर भी वन साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब है the frequency of the output is equals to frequency of the input. Remember, this is one of the important objective questions. Output frequency of the rectifier will be equals to input frequency or not. Output will be equals to input frequency because your input also completes one cycle here and your half wave rectifier also completes one half cycle in the output. So this output will be equals to input. Now coming to the advantages, this circuit of half wave rectifier is simple and low cost, isn't it? एक आपको 230 by ये को चीज आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया, कोई बता सकते हो? क्यों डायरेक्ट आप सप्लाई क्यों नहीं दिए, ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया? मैं 230 वोल्ट्स डायोड को दे सकता हूं क्या? मेरा एसी सप्लाई कितना आता है? स्टेप डाउन द वोल्टेज। To step down the voltage, in order to step down the voltage, we are using a transformer. This transformer will be in the range of, अगर मार्केट में जाओगे आप ट्रांसफॉर्मर छोटा सा जो रेक्टिफायर वाला खरीदोगे उसका इनपुट होगा, उसका रेटिंग होगा आपका आपका रेटिंग होगा 230 और यहाँ पे 12 या 9 वाला भी अवेलेबल है, 9 वोल्ट्स वाला भी अवेलेबल है, 909। नथिंग बट your 230 volts input voltage is converting into 12 volts or 9 volts. This transformer is step up transformer or step down transformer? Step down. Step down transformer. In step down transformer, your 230 volts AC input is converted into 12 volts or 9 volts of AC input. This 9 volts is acting like your, ये जो V input है वो 9 volts वाला या 12 volts वाला होगा, not 230 volts. You cannot give 230 volts input to your diode. So this input is your 9 volts or 12 volts. In here output you will get like as it is following the input, you will get VM. VM क्या है? What is VM? V RMS into √2. √2 times that of your RMS voltage. Your RMS voltage का √2 times, nothing but 12 √2 or 9 √2 times that your, this is your line to line RMS. This is your RMS. 12 √2 yeah, sorry, 9 √2 yeah, 12 √2 is your peak voltage, and current will be this value by your RL. RL जो भी होगा 100 ohms हो या 500 ohms हो, जो भी वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपका करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया। ठीक है, RL का हमेशा ज्यादा वैल्यू होता है तो आपका करंट का वैल्यू हमेशा वोल्टेज से काफी कम होता है। ठीक है, normally use kilo ohms of resistor, the current you will get in very less value. Now disadvantages. Now coming to the disadvantages, the pulsating current in the output contains AC components whose frequency is equals to supply frequency, so filtering is needed. That is the reason why we are using a filter circuit at the output instead of, then in order to make it advantage, this disadvantage can be made into advantage by adding
a capacitor filter to the output, you will get the desired DC or approximate desired DC as you wish when you add a capacitor or any filter. They are not necessarily capacitive filter. By default, we will study about the capacitor filter. The same thing we will perform even in the lab. We have capacitor filter, and that output I will show you in the video. And the video links already आपको post कर दिया गया है, आपको YouTube में available है. अगर यहाँ पे अगर play होगा without any obstacle, then we'll play. Otherwise आप YouTube में भी देख सकते हैं. मैं उसका link आपको भेज चुका हूँ already. I think you might have received through emails also. Those two links you can see with filter कैसे output आता है CRO में और without filter कैसे output आता है CRO में. The AC supplies deliver power during half cycle only, so the output voltage is low. Because क्योंकि only positive half cycle में conduct करेगा, negative में नहीं conduct करेगा, तो obviously आपका जो output होगा वो कम ही होगा, क्योंकि negative half cycle is getting unutilized, utilize नहीं हो पा रहा, तो इसलिए आपका पॉजिटिव ऑफ साइकिल सिर्फ यूटिलाइज हो रहा है, तो आपका आउटपुट हमेशा कम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर विल स्टडी इन द नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फुल वेव रेक्टिफायर है. तो अभी फिलहाल हम फुल वेव रेक्टिफायर नहीं पढ़ते क्योंकि थर्ड एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हम फुल वेव पढ़े. अभी फिलहाल हम हाफ वेव का ही पढ़ते हैं. नाउ कमिंग टू व्हाट वी आर टॉकिंग. या कैपेसिटिव फिल्टर यूज करने के बाद आपका आउटपुट ऐसे आएगा. यहाँ पे रेड लाइन इंडिकेट कर रहा है आपका आउटपुट विद कैपेसिटिव फिल्टर, जो आपका ब्लू लाइन इंडिकेट कर रहा है आउटपुट विदाउट कैपेसिटिव फिल्टर. दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग कैपेसिटिव फिल्टर और एनी फिल्टर. विद फिल्टर विदाउट फिल्टर इतना फर्क पड़ता है आपका आउटपुट. इतना फर्क पड़ता है मतलब आपका जो रिपल है उतना काफी कम हो जाता है. रिपल कम हो जाता है मतलब आपका AC plus DC की जगह almost approximately you will get maximum DC at the output. Clear? यहाँ पे ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर. यहाँ पे हमने C कनेक्ट किया और यहाँ पे आपका AC जो है यहाँ पे फिल्टर ऑटो हो जाएगा और सिर्फ DC जो है आपको आउटपुट में इंक्रीज करेगा. यहाँ पे क्या आ रहा है AC प्लस DC और यहाँ पे AC फिल्टर आउट हो गया और बाकी जो बचा हुआ DC है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा. आपका आउटपुट वेवफॉर्म है ये वाला जो डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है कैपेसिटर नहीं यूज करिया, कैपेसिटर नहीं यूज किया तो आपका डॉटेड लाइन जो है वो आपका आउटपुट है. कैपेसिटर यूज करने के बाद जो आपका आउटपुट है ये जो ब्लैक दिख रहा है दैट विल बी योर आउटपुट. क्या करता है कैपेसिटर? कैपेसिटर रिमेंबर capacitor filter is always connected in shunt to the load. Shunt nothing but parallel. This is your load. You will connect the capacitor filter always in parallel with the load. And during the conduction of the diode, the capacitor charges to its maximum value of input voltage, keeps the voltage maximum. Nothing but capacitor. Whenever the conduction starts, nothing but diode is forward bias. Your capacitor starts to the maximum input voltage and will keep the input voltage maximum. When input at AB is less than its maximum, when the input at AB is less than its maximum or peak value, after point E, the voltage across the capacitor is more positive. It keeps the diode is in reverse bias, even the input voltage during the remaining positive half cycle input, and the output appears as shown in the figure. क्या होगा यहाँ पे ये स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस सर. यहाँ पे जो ए बी है वो सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. दिस सेकेंडरी वोल्टेज इज योर इनपुट ऑफ द डायोड और रेक्टिफायर. ये आपका रेक्टिफायर का पार्ट है विद फिल्टर. जो सेकेंडरी का इनपुट है वो कैसे होगा आपका साइनोसॉइडल वेव, राइट?
दिस इज योर साइनोसॉइडल वेव। तो यहाँ पे क्या है, द कैपेसिटर चार्जेस टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज व्हेनेवर द डायोड कंडक्ट्स, व्हेन डायोड इज कंडक्टिंग ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल, whenever the diode is conducting in the positive half cycle, the capacitor starts reaching to the maximum value. Capacitor charges to maximum value of input voltage. What is the maximum value of input voltage? This is your maximum value of input voltage. This capacitor charges to the voltage Vm. Let us assume maximum input voltage as Vm. This capacitor voltage nothing but capacitor voltage across the capacitor is Vm. Whenever the input voltage is positive, the capacitor charges to a voltage of Vm. Vm चार्ज हुआ तो चार्ज हुआ मतलब कैपेसिटर का अपर प्लेट पॉजिटिव होगा, लोअर प्लेट विल बी नेगेटिव. दिस इज योर चार्ज पोटेंशियल. दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज. व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज? Vm is your maximum voltage. Now coming to when input at AB is less than its maximum. इनपुट एट ए बी इज लेस देन इट्स मैक्सिमम मतलब ये कहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे 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 हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. इवन दिस वन इज पॉसिबल, दिस वन इज पॉसिबल. ऑल दिस बिलो दिस विल कम अंडर बिलो द इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम. व्हेनेवर इट इज लेस देन मैक्सिमम or peak value E, then the voltage across the capacitor is more positive because this voltage across the capacitor has been already, voltage across the capacitor is reached Vm and it is already in maximum. Even though the positive half cycle is at minimum, it keeps the diode as in reverse bias. क्यों reverse bias में keep करेगा? As it is already charged plus connected to negative terminal. यहाँ पे this is anode and this is cathode, right? Let me erase this. Very very important, listen carefully. ये आपका जी एनोड को नॉर्मली पॉजिटिव और इसको नेगेटिव किया तो आपका फॉरवर्ड बायस हो गया. जैसे आपका कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज पे चार्ज हो गया तो कैपेसिटर का अपर प्लेट पॉजिटिव हो गया. अपर प्लेट पॉजिटिव हो गया, अपर प्लेट कनेक्टेड टू कैथोड, नथिंग बट इसको जब इवन जैसे आपका एक बार एक कैपेसिटर चार्ज हो गया, यहाँ पे चार्ज हो गया सपोज, ये है आपका इनपुट वोल्टेज. सी आई एम शोइंग ओनली द पॉजिटिव ऑफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज. एक बार आपका पॉजिटिव ऑफ साइकिल यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे मेरा कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया? Vm चार्ज हो गया बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. इवन दो व्हेन द इनपुट सपोज आपका इनपुट है यहाँ पे आ रहा है एट पर्टिकुलर टाइम, at this point of time it is in this point, so capacitor as it is already positive at this point, this positive connected to negative will make the diode forcibly reverse bias. मतलब यहाँ तक पॉजिटिव बायस में था डायोड और यहाँ से जैसे ये इनपुट वोल्टेज कम हो गया ये डोमिनेट करेगा क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी Vm के चार्ज हो गया. ये कम वोल्टेज है, ये ज्यादा वोल्टेज है, तो ये ज्यादा डोमिनेट करेगा. ये जैसे डोमिनेट किया तो इस पार्ट को जो ये मैक्सिमम के बाद जो कम हो रहा है इस पार्ट को पूरा रिवर्स बायस में कन्वर्ट कर देगा. तो इसका मतलब है ये पूरा जो मेरा ऐसे वेवफॉर्म बन रहा था आउटपुट में ये पूरा कट गया मेरा क्योंकि कैपेसिटर इसको रिवर्स बायस कर रहा है, फोर्सफुली रिवर्स बायस में भेज रहा है. इट कीप्स द डायोड इन रिवर्स बायस. रिमेंबर व्हाट कीप्स इट मतलब कैपेसिटर बिकॉज इट इज ऑलरेडी चार्ज्ड टू द maximum voltage of Vm. As it is charged to the positive voltage of Vm, this plus connected to diode, right? Diode cathode को कनेक्ट किया ना, ये प्लस जो है जो कैथोड को जो कनेक्ट किया है वो इसको रिवर्स बायस करेगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कम है इनपुट का तो ये डोमिनेट कर रहा है कैपेसिटर. जैसे ये डोमिनेट कर रहा है आपका कैथोड को ये मोर पॉजिटिव बना रहा है तो इसको रिवर्स बायस में भेज रहा है. रिवर्स बायस में भेज रहा है, जैसे ये भेज रहा है इसका यहाँ पे कंडक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट पूरा कम हो जाएगा. इसलिए आपका रिपल जो है ऐसे मैक्सिमम पे जाके और उस पार्ट से जो भी नीचे है ये पूरा पार्ट को कैपेसिटर रिवर्स बायस में भेज रहा है और उसके नीचे तो बाई डिफॉल्ट रिवर्स बायस है.
ये पूरा रिवर्स बायस में गुजरा, तो आपका जो रिपल है वो यहाँ पे आके ऐसे जाके, that is how your capacitor filter is reducing the ripple. This is your final Sir. output. Okay. Yeah. सर इस सर्किट में हम इंडक्टर को एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं? तो हाँ, यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते। इंडक्टर, कैपेसिटर फिल्टर, सीएलसी फिल्टर, आई विल टीच यू इन क्लास कि इन डिटेल कितने टाइप का फिल्टर होता है, उसका रिपल फैक्टर कितना होता है, कब कहाँ यूज करना है, ये सब कुछ आपको क्लास में बताऊँ। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि कैपेसिटर यूज करने के बाद क्या कर रहा है, ये फोर्सफुली इसको रिवर्स करके आपका जो रिपल है उसको रिड्यूस करके आपका आउटपुट जो है अप्रॉक्सीमेट डीसी पहुंचने तक कर रहा है। मतलब ये अप्रॉक्सीमेट डीसी ये पहुंचने तक आपको ये कैपेसिटर हेल्प कर रहा है। दिस इज हाउ इट इज मेकिंग द आउटपुट। दैट इज द एडवांटेज ऑफ योर कैपेसिटर फिल्टर। दिस इज द जनरली यूज्ड फिल्टर in many of your rectifier circuits, because the maximum is your voltage ripple that you should reduce, so you will go for capacitor filter. इसका ripple factor का formula everything will be discussing in the coming classes. Yeah, I will be sharing you this PPT also, you can refer। अगर आपको कुछ भूल गए फिर भी आप पढ़ सकते हो। और पॉइंट ये हो गया। और फिर क्या है, आपका डायोड is in downward reverse bias and continues the anode voltage is more positive than cathode after point P, and capacitor discharges through the load until the diode comes into conduction। एक बार जो चार्ज हुआ कैपेसिटर वो इसके बाद डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और फिर जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर एक बार ये डोमिनेट करेगा, इसको कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पार्ट पूरा डिस्चार्जिंग पार्ट, ये यहाँ पे पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पे आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज पे चार्ज हो रहा है। एक बार मैक्सिमम पहुंच गया, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ द कैपेसिटर अंटिल इनफाइनाइट टाइम। दिस इज हाउ योर रेक्टिफायर विद फिल्टर वर्क्स। नाउ यही चीज 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई तक, as pi and 2 pi are in radians, this will be in omega t not t। तो इसका मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालूंगा? एवरेज वैल्यू ऑफ VDC is given by, how can you तो एवरेज वैल्यू normally is 1 by t integral 0 to t, right, VDC t। This is the average value of your average value is nothing but VDC। ठीक है, 1 by t क्या है, टोटल टाइम पीरियड क्या है, 1 by t is nothing but your total time period is 2 pi, and this interval is from 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, this is capital T, sorry, 0 to 2 pi, pi to 2 pi मेरा वैल्यू 0 है तो मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ 0 to pi मेंशन कर रहा, 0 to pi, and this is just like your input। your input is nothing but Vm sin omega t, right? Vm is the maximum value and the waveform is sine, and you can represent the input as Vm sin omega t। So I am writing Vm sin omega t, clear? और d ओमेगा t, और उसके बाद 1 by 2 pi sin omega t का इंटेग्रल। व्हाट इज द इंटेग्रल फॉर sin omega t? Vm कॉमन ले लिया मैंने, तो Vm मैं बाहर कर दूं। इंटीग्रेशन तो पढ़ा होगा, बताओ sin ओमेगा t का इंटीग्रल क्या है? माइनस cos ओमेगा t। वेरी गुड, माइनस cos ओमेगा t बाई ओमेगा, माइनस cos ओमेगा t। हम ओमेगा t के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो ओमेगा t इज योर t, तो आपको बाई ओमेगा नहीं आएगा, ठीक है? दिस इज नॉट dt, दिस इज d ओमेगा t, बिकॉज यूर पाई एंड 2 पाई में ले रहे हो, तो इसका मतलब है आपका रेडियंस में है।
रेडियंस में है, टी मतलब सेकेंड्स में होगा, आपका रेडियंस में है मतलब आपका ओमेगा टी है, ये डी ओमेगा टी है, नॉट टी। ठीक है, तो बाई ओमेगा नहीं आएगा। तो लिमिट्स क्या है, 0 से लेके पाई। व्हाट इज माइनस कॉस पाई? क्या आएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद? +1. It is +1. Cos 0 minus of minus cos 0. This is minus symbol is there, right? Minus of minus cos 0. Cos 0 कितना है? Cos 0 कितना है भाई? 1. Minus of minus 1 it is +1. +1. 1 + 1 2. ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था और कॉमन क्या था? Vm/2π। तो मेरा VDC एवरेज कितना आ रहा है? 2 गेट्स कैंसल्ड। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू आई एम गेटिंग? RMS वैल्यू क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? सेम 1/t इंटीग्रल 0 to t क्या होगा? v² d ओमेगा टी। क्लियर है? यही है ना RMS वैल्यू? RMS वैल्यू यही है ना, रूट मीन स्क्वायर, रूट ओवर 1/t इंटीग्रल 0 to कैपिटल T v² dt, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। Here same procedure remains same. Total time period is 1/2π and your this will be v is equals to 0 to as pi to 2π is 0, तो मैं उस इंटरवल को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 0 to π ले रहा हूँ, क्योंकि pi to 2π तो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि आपका रेक्टिफाइड क्या है आउटपुट, ये है आपका रेक्टिफाइड आउटपुट, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 0 से π तक कंसिडर कर रहा हूँ। तो 0 से π तक कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरा ये v² जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब Vm² और sin² ओमेगा टी आएगा। sin² ओमेगा टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? sin² ओमेगा टी को कैसे लिख सकता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री कैसे लिख 1 सकता हूँ? minus cos 2 omega t वेरी by गुड, वेरी 1 minus 1 cos 2 omega t/2. cos 2 ओमेगा टी बाई 2। अगर ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे, ये पूरा सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट Vrms as Vm/2। ट्राई टू सॉल्व दिस। क्लियर? 1 minus cos 2 ओमेगा टी आ गया, फिर cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल लोगे, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल sin 2 ओमेगा टी होगा, उसमें 0 to π लिमिट सब्स्टिट्यूट करो और यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। और 1 का लिमिट क्या होगा? इंटीग्रल 1 का क्या होगा? इंटीग्रल 1 d ओमेगा टी क्या होगा? इतना तो पता होगा यार, इंटीग्रल 1 dt ओमेगा टी। वेरी गुड, वो ओमेगा टी होगा। ओमेगा टी में आपका लिमिट्स होगा 0 से लेके π तक, ये सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है।